Hello guys, so today in this lecture we are going to start a very new topic, that is greedy strategy, which is one of the algorithm design technique. So and specifically we will see the knapsack problem, one of the application of greedy strategy. So let us start, and those who want to learn divide and conquer strategy applications, so they can refer my previous videos and some other sorting techniques also. So let us start. Greedy technique and knapsack problem. So first of all, what is the general strategy of greedy technique? तो greedy technique में क्या रहता है? N inputs are given. So one input is given, that is input in some n objects, okay, and some condition, and some condition is also given. Some conditions or some constraints. These are also called as constraints. Constraints are given. ओके और आउटपुट क्या रहेगा हमारा? एंड आउटपुट विल बी सबसेट ऑफ इनपुट. तो जो इनपुट है उसी में से कुछ उसका सबसेट जो रहेगा, दैट विल बी द आउटपुट. तो आउटपुट क्या हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट, समथिंग लाइक दैट, है ना. कि अगर हमें किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज समथिंग लाइक प्रॉफिट को हम मैक्सिमम करेंगे, ठीक है. तो मैक्सिमाइज और मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट अगर किसी चीज की है तो उसको हम रिड्यूस करेंगे, सो दैट इज मिनिमम कॉस्ट. Okay, so these kind of outputs must be there. This is the objective function. Okay, so this in general, these are known as objective function. Okay, I will explain these things. And so this is written that most of the problems in the greedy technique contain n inputs. Okay, our objective is finding subset of the given input which will satisfy our requirement. जो हमारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे या जो हमारे कंस्ट्रेंट या कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट विल बी अवर व्हाट आउटपुट. So subset of input will always be the output in greedy strategy. So the general meaning of greedy means some sort of means some we can say in Hindi term we can say some lalichi, है ना. So we are greedy about something. Okay, so some peoples are greedy about money, some peoples are greedy about fame, some peoples are greedy about some different things. So that's why. So this is one of the algorithm design technique that in the designing strategy we will be greedy about some particular thing in algorithmic point of view. So the general strategy says that n inputs are given, some condition is given, you are supposed to provide some subset of the input. Okay, so there are some points or important terminologies related to greedy strategy. So first one is problem definition. So what is problem definition? So understanding the problem clearly, this is very important step. तो हमें पहले प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझना है. व्हाट इज द प्रॉब्लम गिवन. नेक्स्ट इज सॉल्यूशन स्पेस. सो व्हाट इज सॉल्यूशन स्पेस? ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द गिवन एन इनपुट्स. जो भी हमारे एन इनपुट्स गिवन हैं उनके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दैट इज द सॉल्यूशन स्पेस. और उस सॉल्यूशन स्पेस में से कुछ सॉल्यूशंस जो हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके, दैट इज द फिजिबल सॉल्यूशन. Okay, so that is nothing but feasible solution. Feasible solution means feasible solution is one of the solution in the solution space uh, which will satisfy our what conditions, and one of the solutions, so one of the solutions in the solution space which will satisfy our condition. ओके, तो कई सारे सॉल्यूशन स्पेस में सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, बट उनमें वो सॉल्यूशंस भी होंगे जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं. तो उनमें से केवल वो सॉल्यूशंस अगर हम लें जो हमारी कंडीशंस को या कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे फिजिबल होंगे. ओके, और फिजिबल सॉल्यूशन में से जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, वो सारे ऑप्टिमल हो जाएंगे. ऑप्टिमल मींस बेस्ट सॉल्यूशंस. Okay, so optimal solution is one of the feasible solution which will give maximum profit or minimum cost. Okay, so optimal solution in general will optimize our objective function, will optimize our objective function. Okay, so this is the general strategy. So problem
understanding the problem clearly, solution space, all possible solutions, feasible solution, which will contain all solutions from the solution space which are satisfying our condition or constraint, and optimal solution. So those solutions from the feasible solution which will ultimately optimizing our objective function. Objective function means either maximizing our profit or minimizing our cost. Okay, so let us see the control abstraction, how the greedy algorithm work will work in general. Okay, then we will see the actual problems or actual applications. तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये greedy है, यहाँ से start हुआ है और ending till here, and this is the if part, and this is the else part. General abstraction means definitions are not clear, just a rough idea about how the things are going on. So some a comma n, a array and n puts are given some sort, so greedy strategy. And solution, initially we are assuming solution is 5. Okay, there is no solution available. Okay, solution we are assuming we don't have any solution. So for I equal to 1 to n, so from 1 to n means for the given जो साइज है हमारी प्रॉब्लम का, उस साइज तक हम रन करेंगे, तो उसमें से सिलेक्ट करेंगे किसी को, है ना, उस गिवन प्रॉब्लम में से x, लेट अस सपोज दिस इज x, और अगर x हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल निकला, इफ x इज फिजिबल, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे. ओके, एंड दिस लूप विल रन फॉर n टाइम्स. ओके, एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर n इन नेचर. ओके, सो मिनिमम अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लूप है सिंपल, n टाइम्स रन होगा, बट इंटरनल क्या होगा वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा. ओके, बट मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ग्रीडी एल्गोरिथम की, दैट इज ओमेगा ऑफ n, बिकॉज मिनिमम आपको एटलीस्ट एक लूप रन तो करना ही पड़ेगा. ओके, सो जो ग्रीडी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो ग्रीडी एल्गो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इन जनरल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी that ranges what, so that ranges from omega of n, that ranges from omega of n to order of n square maximum. ओके, सो मैक्सिमम इतना वेरी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रीडी स्ट्रेटेजी. ओके, सो जनरल टाइम को तो अभी ये मिनिमम है, बट इंटरनल लूप के अंदर वो डिपेंड करेगा कि क्या सिनेरियो है, क्या हमारे है ना प्रॉब्लम इन हैंड है, देन वी विल सॉल्व अकॉर्डिंगली. एंड सो दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज अप टू मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, नॉट मोर देन दैट. Okay, so there are some applications of greedy strategy. So those are greedy knapsack, and also it is also called as real knapsack, because one knapsack is also there, that is in divide and conquer strategy. तो ये हमारा है रियल knapsack. नेक्स्ट है जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन. सो दिस इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन. ओके, एंड थर्ड इज मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. So in short it is also known as what, MST, minimum spanning tree, or MCST, minimum cost spanning tree. Next is Huffman coding, है ना, and optimal merge pattern and single source shortest path. So single source shortest path में Dijkstra's algorithm, and also there is some well-known Bell-Manford algorithm. Bell-Manford algorithm. So these two algorithms are there as single source. And minimum cost spanning tree में आपकी दो algorithms होंगी, that is Kruskal's and Prim's. Kruskal's algo and Prime's algo. Prime's algo. So we will see all these things in detail, है ना, in greedy technique. So आज का जो हमारा discussion है, that will be on greedy knapsack. Okay, so let us start that. So greedy knapsack. So what is greedy knapsack? Greedy knapsack is also known as real knapsack. Okay, because one more knapsack is problem is available, that is in dynamic programming, algorithmic design approach. So this is greedy knapsack. So
बेसिकली है क्या प्रॉब्लम, क्या है ग्रीडी नैपसैक में कि नैपसैक, नैपसैक इज सम सॉर्ट ऑफ कंटेनर, है ना, मींस सम कैरिंग बैग। तो इसमें हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या है कि हमें, लेट अस सपोज यू आर अ रिटेलर, है ना, आप रिटेलर हैं, और आप किसी जो है होलसेलर के पास जाते हैं। तो रिटेलर जो है होलसेलर के पास जाएगा, तो आपको एक बैग है आपके पास, नैपसैक है, जिसका कुछ कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी में भी 10 किलो, में भी 100 किलो, है ना, सम कैपेसिटी इज देयर। तो आपको क्या करना है कि आपको जो होलसेलर है उसके पास आइटम्स हैं, प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट्स हैं, and उसके वेट है और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट है ना। जैसे आप अगर फर्स्ट आइटम परचेज करेंगे तो उसका वेट इतना है, प्रॉफिट उस पर इतना मिलेगा। सेकंड आइटम पे आपका वेट इतना है, प्रॉफिट इतना मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि आपका बैग जो है, नैपसैक जो है, उससे उसकी जो कैपेसिटी है उससे एक्सीड नहीं करना है। और आपको ऐसे आइटम्स को चूज करना है वहां पे जो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दें। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट दें, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अ सेलर, है ना, यू आर अ रिटेलर। आप एक शॉपकीपर हैं, तो आप वही सामान प्रेफर करेंगे जो है ना। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रियल काइंड सिनेरियो। ओके, सो मींस इनपुट में क्या है, नैपसैक की कैपेसिटी गिवन है एम, आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स के वेट गिवन है, ठीक है, और साथ में आपको प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, आपको एक ऐसा जो है कुछ ऐसा मैकेनिज्म या कुछ ऐसा आपको एक एरे डिफाइन करना है जो कि 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, मीन्स या तो आप वो आइटम, 0 मीन्स वो आइटम आपने लिया पूरा ओवरऑल, 1 मीन्स वो आइटम आपने, 0 मीन्स वो आइटम आपने नहीं लिया, 1 मीन्स वो लिया। और फ्रैक्शन भी आ सकता है 0 to 1 के बीच में, मीन्स आपने कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन अमाउंट लिया उसका। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। सो हम डिटेल में देखते हैं प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो हमारा ऑप्टिम जो प्रॉब्लम है दैट इज वेट्स जो है हमारे आइटम्स के, आई इंडिकेट्स आइटम वेट फॉर 1, वेट फॉर 2, वेट फॉर 3, लाइक दिस। तो ये हमारा कैपेसिटी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स है ना। तो दिस मस्ट बी, दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारा वेट जो है वो कैपेसिटी से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, सो वेट्स मे बी ग्रेटर देन कैपेसिटी, वेट्स may be greater than knapsack capacity। ओके, एंड फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, कि आपको वेट्स के वही फ्रैक्शंस लेना है, और उस फ्रैक्शन में वेट लेना है कि ओवरऑल जो वेट हो वो लेस और स्मॉलर हो सकता है किससे, knapsack कैपेसिटी। ओके, तो है ना, वेट्स ऑफ ऑल chosen items, weights of all chosen item, chosen items in any fraction must be less than or equal to knapsack capacity, knapsack capacity। ओके, सो दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन। एंड ऑप्टिमल क्या होंगे उनमें से, ऑप्टिमल होंगे जो हमें मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट को। ओके, तो आई इक्वल्स टू 1 to n, आई इक्वल्स टू 1 to n। तो हमारे जो प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट्स भी गिवन है, प्रॉफिट को जिस रेशियो में हम लें दैट विल मैक्सिमाइज, दैट विल बी मैक्सिमम। ओके, सो maximum। Okay, so that is our objective function। So this is what, this is, we can see this is what, this is our objective function, this is our objective function। Okay, so I hope that this is clear। So this x, that's why I'm writing कि ये x जो है x1 x2 x3 ये 0 1 के बीच में होगा। Okay, it depends।
वेट हमें कोई कितना फ्रैक्शन में लेना है वो डिपेंड करेगा। तो लेट अस सी द एक्चुअल थिंग व्हाट इज द सीन बिहाइंड नैपसेट। ओके, so this is the problem given कि n equals to 3 items. So this is object number 1, this is object number 2 and this is object number 3। उनके एसोसिएटेड प्रॉफिट्स हैं और वेट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ दो स्ट्रेटजी देखते हैं, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको ग्रीडी अबाउट वेट, ग्रीडी अबाउट वेट मीन्स हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर हम वेट के अबाउट ग्रीडी हुए, वेट्स के अकॉर्डिंग अगर हमने कंसीडर किया, तो वेट्स के अकॉर्डिंग अगर हमने कंसीडर किया तो हमारा x जो है वो क्या निकल के आएगा, x हमारा निकल के आएगा जो वेट्स हैं हमारे और जो प्रॉफिट्स हैं। तो प्रॉफिट्स हमारे हैं 25, 24 एंड 15 और वेट्स करस्पॉन्डिंग 18, 15 एंड 10। सो इट इज 18, 15 एंड 10। तो अगर हम वेट्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट वेट कौन है, तो द हाईएस्ट वेट इज व्हाट, let us understand this problem clearly। highest weight is what, 18, so take the 18 first। so ये फर्स्ट लिया आपने, तो 18 लिया मींस आपने ये वाला कंप्लीट लिया, और कंप्लीट लिया तो आपकी नैपसेक की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑलरेडी गिवन है 20, तो 20 में से कितना माइनस होगा 18, तो आपका रिमेनिंग कितना रहा, रिमेनिंग रहा 2, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है, ये 15, तो 15 आप पूरा ले नहीं सकते क्योंकि आपका कितना है 2 अवेलेबल है, तो आप कितना ले सकते हैं 2/15 ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड, सो दिस वी कैन टेक इट एज 2, इसमें से ओवरऑल जाएगा वेट, सो दिस विल बी, तो ये आपने कितना लिया, दिस विल बी 2/15 आपने लिया, 15 में से 2 लिया, ठीक है, और ये आप ले नहीं पाए 0। तो इसमें जो आपका प्रॉफिट निकला, जो आपका प्रॉफिट निकला यहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या आएगा, पहला आपने कंप्लीट लिया तो प्रॉफिट विल बी 25 into 1, ठीक है, प्लस सेकंड जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो कितना लिया आपने, वेट के करस्पॉन्डिंग लिया है ना, तो प्रॉफिट था 24 और आपका फ्रैक्शन लिया आपने 2/15 लाइक दिस, ओके। एंड थर्ड आपका प्रॉफिट था 15 बट वो आपने एक भी नहीं लिया, तो 0। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, तो इट इज 25 प्लस 3, 5, 15 and 3, 8, 24, 16 upon 5, so 5, 3 is 15, 3.2 and plus 0. So what is the net profit, so it is 28 something, we can say in rupees, so 28 rupees and 20 paisa like this, okay। So this is a, if we greedy about what, greedy about weights। Now let us check this problem if we will be greedy about what, if we will be greedy about profits। अगर हम प्रॉफिट्स के करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि हम अगर ज़्यादा प्रॉफिट वाला लेंगे तो क्या हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, सो ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट्स। तो ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट्स हम देखते हैं, तो इसमें हमें प्रॉफिट गिवन है और वेट्स गिवन है। प्रॉफिट्स गिवन है 25, 24 एंड नेक्स्ट इज 15 और वेट्स हमें गिवन है 18, 15 एंड व्हाट 10 और कैपेसिटी हमारा गिवन है कि m equals to what, 20। so let us take the array fraction array x, so fraction array x, so let us take, तो पहले हमने हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है, हाईएस्ट प्रॉफिट हमारा है 25, सो 25 मीन्स ये हमने फर्स्ट लिया, तो 25 को कंप्लीट ले लिया, तो इसका वेट कितना था 18, तो
20 में से 18 जाएगा तो दिस रिमेनिंग 2। नेक्स्ट प्रॉफिट हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रॉफिट इज ऑल्सो दिस, सो नेक्स्ट प्रॉफिट इज दिस। तो ये प्रॉफिट हमारा अगर लेते हैं तो इसका हम 2 पार्ट ही ले पाएंगे। सो 2 पार्ट लेंगे तो हमारा वेट हो गया 0, और 2 पार्ट लेंगे सो इट इज 2/15। 15 में से 2 पार्ट लिया तो फ्रैक्शन इज 2/15, और थर्ड आप ले ही नहीं पाएंगे, कैपेसिटी नहीं है। सो फाइनली जो आपका नेट प्रॉफिट निकला, तो नेट प्रॉफिट विल बी फर्स्ट प्रॉफिट कंप्लीट 25 into 1, और सेकंड प्रॉफिट का आपका कितना पोर्शन है? 2/15, सो 24 का 2/15, एंड थर्ड प्रॉफिट का आपका 0, क्योंकि जो आपने कंसीडर नहीं किया है। So finally this is same as the previous one, so you will get 28.20 as answer. ठीक है, but let us change the scenario. If we greedy about both profit and weight, so greedy about both means profits and weights. ओके, तो इसमें किस तरीके से ग्रेडी हो सकते हैं कि अगर हमें पर यूनिट वेट पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो तो प्रॉफिट अपॉन वेट निकालेंगे हमें ना, दैट विल बी द रिक्वायर्ड। सो प्रॉफिट इज गिवन 25, 24 and 15, and weights are 25, 24, 15, 18, 15 and 10. 18, 15 and 10, और आपकी कैपेसिटी क्या गिवन है? सो कैपेसिटी इज गिवन एज 20। ओके, सो हम ग्रेडी अबाउट बोथ हैं तो हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन वेट। सो प्रॉफिट अपॉन वेट निकालेंगे, सो 25 अपॉन 18 और 24 अपॉन 15। गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉफिट अपॉन वेट मींस जिसमें हमें पर यूनिट वेट पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, सो प्रॉफिट अपॉन वेट। नेक्स्ट इज 15 अपॉन 10। तो हम कंसिडर करते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट पर यूनिट वेट कितना है? 1.6। सो इसको हम पूरा लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी आर टेकिंग। सो 15 वेट लिया हमने, सो 20 minus 15, सो रिमेनिंग इज व्हाट? रिमेनिंग इज 5। तो इस सेकंड कंप्लीट लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट इज दिस, सो प्रॉफिट पर यूनिट वेट, सो दिस। तो इसमें 10 है बट हमें 5 लेना है, तो 5 हम पार्ट ले लेंगे, सो दिस इज 0, एंड 10 का 5 लिया मीन्स 5/10, सो 5/10, और रिमेनिंग का 0। सो व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट हमारा होगा, इट इज फर्स्ट पार्ट हमने 0 लिया है, सो प्रॉफिट भी 0 होगा, तो 25 का 0 फ्रैक्शन, और सेकंड का हमने कंप्लीट लिया है, सो 24 का 1 फ्रैक्शन, और थर्ड प्रॉफिट कितना है? 15। 15 का हमने कितना लिया है? 5/10 पार्ट। सो नाउ 15 5 75 upon 10, 7.5, so this is 0 plus 24 plus 7.5, so finally we are getting 31.5, which is the maximum. Okay, so this is maximum as compared to previous approaches. Okay, so greedy about both is the best idea for greedy knapsack. So finally we can say in this कि greedy knapsack will give optimal solution every time by giving priorities to both profit and weight. So profit and weight किस सेंस में? प्रॉफिट पर यूनिट वेट के हिसाब से अगर हम उसको वेट लेते हैं उसका, then only, है ना। And the solution space of greedy knapsack is infinite, because infinite number of solutions are there. You can take any number of, है ना, what fraction. So like fraction in the sense uh, means 0.1, 0.0011, something like so, infinite number of seconds, huh? And output of greedy knapsack is what? Output of greedy knapsack is fractionary.
नॉट द दिस इज आउटपुट इज नॉट द नेट प्रॉफिट है ना कि सो वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रैक्शन एरे मींस दिस एक्स एरे दिस इज द आउटपुट ओके so this is the output array now let us quickly solve some more problems so this n is 5 n equals to 5 is given so profit per unit है ना so I am taking pi upon wi profit per unit weight so पहला क्या है पहला इज प्रॉफिट पर यूनिट वेट इज 5 upon 5 next is 2 upon 4 next is 2 upon 6 next is 4 upon 2 and next is 5 upon 1 सबसे पहले कैलकुलेशन यही है तो इसमें आएगा 1 हमारा दिस इज 1 by 2 means 0.5 and this is 1 by 3 means 0.33 something like this and 4 by 2 is going to be 2 and 1 by 5 is going to be 5 so दिख रहा है हमें हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है हाईएस्ट प्रॉफिट हमारा है दिस तो हमारा जो एक्स एरे होगा एक्स एरे ठीक है एक्स एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे देयर मस्ट बी 5 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हमारे 5 फ्रैक्शन एरे है दिस इज फ्रैक्शन एरे फ्रैक्शन एरे तो फ्रैक्शन एरे में पहले कौन सा लेंगे पहले ये 5 वाला लेंगे तो ये फर्स्ट लिया है ना फर्स्ट इसको लिया तो ये कंप्लीट ले लेंगे सो ये हमने 1 लिया तो हमारा रिमेनिंग जो नैपसैक की कैपेसिटी है वो 12 थी 12 में से फिफ्थ की कैपेसिटी चली जाएगी व्हाट इज द कैपेसिटी सो फिफ्थ कैपेसिटी कितनी है 1 तो रिमेनिंग हमारा कितना रहा 11 फिर देन आफ्टर दैट 5 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है 2 तो ये 2 की कैपेसिटी 2 मीन्स फोर्थ वाला है ऑब्जेक्ट उसकी कैपेसिटी कितनी है 2 तो यहाँ भी कंप्लीट लिया ये 2 हम माइनस करेंगे कैपेसिटी में से तो यहाँ आपका रहता है 9 फिर देन आफ्टर दैट 1 है ये हमारा तो 1 हम कंप्लीट ले सकते हैं क्या यस इसका 5 कैपेसिटी अवेलेबल है 9 माइनस 5 सो ये बचा हमारा 4 तो ये हमने कंप्लीट ले लिया ठीक है देन आफ्टर दैट 0.5 तो ये हम फुल ले सकते हैं क्या सो ये फर्स्ट है ये सेकंड लिया हमने ये हमने थर्ड लिया एंड दिस विल बी अवर फोर्थ एंड दिस विल बी अवर फिफ्थ ओके सो फोर्थ हमने लिया फोर्थ हम पूरा ले सकते हैं क्या 4 यस हम ले सकते हैं कंप्लीट ले सकते हैं 4 माइनस 4 इज 0 दिस इज कंप्लीटली टेकन सो दिस इज 1 एंड फिफ्थ एलिमेंट मीन्स इस एलिमेंट के लिए स्पेस नहीं है ना ऑलरेडी हमारा नैपसैक फुल हो चुका है so finally what will be the net profit so profit is going to be but output is this array and profit anyhow if you want to calculate so 5 को आपने first को आपने complete लिया है so this what will be the net profit so net profit is something like this sigma I equal to 1 to n and pi multiplied by xi this only na so this is our required answer तो उसमें क्या होगा पहले हमारा होगा 5 into 1 एंड प्लस सेकंड वाला हमने कंप्लीट लिया है सेकंड का प्रॉफिट है 2 into 1 थर्ड हमने नहीं लेना है तो 2 into 0 फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट लिया है तो फोर्थ का प्रॉफिट है आपका 4 into 1 एंड प्लस फिफ्थ का प्रॉफिट है 5 into 1 so finally you will get what 5 plus 2 7 7 plus 4 5 9 9 plus 7 is 16 so overall profit is what 16 so this is our output है ना getting my point very simple next problem is we can also solve this problem so profit upon weight we are calculating first so pi upon wi तो पहला क्या आएगा पहला आपका होगा 10 upon 2 then 15 upon 3 then 15 upon 5 then 7 upon 7 of course then 6 upon 1 then 18 upon 4 and then 3 upon 1 तो ये कितना है ये 5 आएगा this will be 5 and this is 3 this is 1 this is 6 and 4 upon means 9 upon 2 means 4.5 so it is 4.5 ये आपका 3 ठीक है
नाउ फाइनली एक्स एरे आपको लेना है, तो एक्स एरे देखते हैं, फ्रैक्शन एरे। फ्रैक्शन एरे क्या रहेगा, इसमें 1 0 या कोई फ्रैक्शन भी आ सकता है, ठीक है, दिस। सो हम फर्स्ट पहले क्या लेंगे, हाईएस्ट प्रॉफिट। तो हाईएस्ट प्रॉफिट क्या है, हाईएस्ट प्रॉफिट इसमें हमें मिल रहा है 6। तो यहाँ हम ये वाला कंप्लीट ले लेंगे। तो ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ एलिमेंट का वेट हम माइनस करेंगे। फिफ्थ का वेट क्या है, ये 1। तो 1 माइनस करेंगे तो हमारा वेट कितना रहा, 15 माइनस 1 विच इज 14। ओके, फिर देन नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है, ये हमने फर्स्ट लिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड क्या लोगे आप, सेकंड देन 5 5 है, सो आप दोनों को ले सकते हैं। सो ये सेकंड ये लेंगे और थर्ड ये लेंगे। तो सेकंड का वेट कितना है, 2। तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, सेकंड मीन्स ये फर्स्ट वाला है ना 2। तो 14 माइनस 2, तो ये कितना आया 12। एंड ये भी ले लिया आपने और ये थर्ड वाला भी कंप्लीट आ जाएगा। थर्ड का कितना है 3, सो 12 माइनस 3 विच इज नथिंग बट 9। फिर फोर्थ आपका आएगा ये 4.5 वाला, ठीक है, 4.5 वाला आपका फोर्थ होगा। तो ये है आपका सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट का कितना है वेट 4, तो यहाँ से 4 माइनस होगा, सो यू विल गेट 5। और ये आपने कंप्लीट ले लिया। अब आपका 5 कैपेसिटी है, केयरफुली ऑब्जर्व करिए, पहले ये 3 वाला लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट यही है। तो दिस इज फिफ्थ, तो ये थर्ड एलिमेंट है, ये 5 कंप्लीट आ जाएगा, यस। इसके बाद आपके पास कैपेसिटी ही रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट लिया और रिमेनिंग कितने रहेंगे, 0 एंड 0। तो आप अगर इसमें प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट आंसर। सो फाइनली आंसर इज दिस फ्रैक्शनरी ओनली, but anyhow we are calculating profit. Sometimes profit will also ask in your academic examination also, है ना। तो पहला आपने कंप्लीट लिया है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट विल बी 10 टाइम्स 1। एंड दूसरा प्रॉफिट आपका 15 टाइम्स 1। एंड थर्ड प्रॉफिट भी कंप्लीट लिया है आपने, 15 टाइम्स 1। और फोर्थ जो है वो आपने नहीं लिया है, तो 7 प्रॉफिट था, तो आपने एक भी नहीं लिया है, 7 टाइम्स 0 फ्रैक्शन। फिफ्थ एंड सिक्स लिया है, तो 6 और 18 है, तो 6 टाइम्स 1 एंड 7, नॉट 7, इट इज 18। 18 प्रॉफिट, तो वो कंप्लीट लिया है। और लास्ट आपने एक भी नहीं लिया है, तो 3 टाइम्स 0। सो फाइनली यू विल गेट what, 10 plus 15 and plus this is again 15 and this is what, 0, this is 6, this is 18 and this is 0. So finally you will get what, 15, 30, 40, 40 and 18, 16, 24, 40, 24. So 64 will be the answer in that case. Okay, so this is the net profit in this case. Okay, so finally what we are doing in algorithmically, so first we are calculating profit per unit weight, so pi upon wi। so उसको हम array में store कर रहे हैं, ai में। तो हमने profit per unit weight निकाला, so what will be the time for that, the time for that is what, order of n। फिर उसमें हमने a array जो है उसको अरेंज किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बिकॉज डिक्रीजिंग में होगा तभी हम उसको उसमें से एक एक करके एलिमेंट ले पाएंगे। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना मीन सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग के लिए आप smaller size area, so you can take any algorithm like merge sort or है ना, like insertion sort, whatever, but n log n order time complexity हो सकती है उसकी। take one by one object from the above array until m becomes 0। तो इसमें भी आपका कितना आएगा, इसमें आपका ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, बिकॉज आप उस एंटायर एरे को स्कैन करेंगे एक करके। सो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, so time complexity for time complexity of greedy knapsack, so it is what, order of n log, because it is the highest term. So this is the time complexity of greedy knapsack. Okay,
So finally, we are at the end of this lecture, and if you enjoyed this lecture, so then please like, subscribe, and share this channel to your learning community. So happy learning to all of you. Stay safe.